I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible. And we'll dream impossible. I will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking, until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing, I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes 1,000 lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible.
I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in. Hi guys, so I'm going to play two instruments. So here you can see this instrument is called as a octoped. So I'm going to play two songs in this instrument octoped, and the next instrument which I will play is a congo, in which I'll play a old Hindi classical song. So here are this is the first song which is a garba, or you can also call it as a dandiya. So this is my first song.
Hennessy. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta. वन स्मॉल शायरी फ्रॉम मी। आपका प्यार और आपका मिलना हम सब पे है कुर्बान। आपसे ही हम जुड़े और जुड़ते चले गए, इसलिए खैरियत बहुत करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि कहीं तो लिखा था हमारी मुलाकात होगी, वरना यूं ही नहीं मिलता आपका प्यार। थैंक्स टू आइकॉन ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रलाइज CTM टीम। Hi everyone, this is Vijay Mandal. So today I am going to present you some comedy. So I'm trying, I'm not a stand-up comedian. In fact, I'm sitting only. How can I do comedy? Anyway, so I'm not a professional one, so please excuse if you are not having any kind of an humorous, you don't find any humorous and anything like that. So come back to the topic. See, when I joined this industry, that was my, I still remember 13 years back, that was my first flight, honestly. मतलब इससे पहले खुद के पैसे से कभी नहीं गया. So बट ऐसे भी लोग होते हैं फ्लाइट में जो मतलब दे आर वेरी फ्रीक्वेंट फ्लायर. सो बेसिकली इन फ्लाइट व्हाट आई ऑब्जर्व इज ओनली टू काइंड ऑफ पीपल दे यूज टू ट्रैवल इन फ्लाइट. एक हम जैसे लोग होते हैं जो ऑर्डिनरी सिंपल लोग होते हैं जिनको देख के ही लोग पहचान जाते हैं, ओह कंपनी के पैसे से आया. और एक ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब बचपन में ही जिन्होंने इंटरनेशनल फ़्लाइट इतनी ले ली होती है कि वो अगर हिंदी में भी कुछ बोले तो हमें इंग्लिश ही लगती है. सो या दे आर फ्यू पीपल. सो आई स्टिल रिमेंबर दैट आई वाज इन द फर्स्ट फ्लाइट एंड आई वाज वेरी नर्वस. Since from check-in, security and sitting on my seat and tying my seat belt and everything till that flight do not have this complete procedure completed. I was very nervous. And that guy who was sitting next to me, he was very cool, very calm. I think that international kind of a person. So we are sitting together and we both had a complimentary meal. So अब नहीं देते, पहले दिया करते थे. So it was a time when their air hostess is coming to all of us and
they're giving this meal, they're asking one by one. So that one beautiful air hostess, she came to our seat, and as usual, I am looking like an ordinary person. So she first asked that person that, "Sir, what would you like to have?" So that gentleman politely answered, "What do you have in the menu?" So it's like somebody is giving an option. She told some 2-3 dishes name. I can't remember. तो उन्होंने कुछ डिश के नाम बताए और फिर that gentleman said, "Yeah, give me this, and what would you like to have in complimentary drink?" So he said something. Now she came to me. Now she asked in हिंदी, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि शक्ल देख के कि ये भाई फ्लाइट में पहली बार आए तो पता नहीं, तो उन्होंने हिंदी में पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो मैंने इंग्लिश में जवाब दिया। अब कन्फ्यूज़न ये होता है लोगों को कि जब लोग हिंदी में पूछे और जवाब इंग्लिश में आता है तो इसके दो ही मतलब होता है, या तो वो बंदा अपनी इंग्लिश को ट्राई कर रहा है या शायद अभी नया नया बोलना सीखा है। तो एट लास्ट हम दोनों को कुछ मिल गया खाने को और हम दोनों ने कुछ खा लिया। बट उस दिन मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि भैया मैं कितना भी अपने आप को चेंज करूँ, लेकिन जब भी मैं फ़्लाइट में बैठूँगा तो एयर होस्टेस कैन ईजली आइडेंटिफाई मी एज अ पर्सन हु इज़ नॉट एन फ्रीक्वेंट फ्लायर। तो ये ऐसी चीज़ें काफ़ी हुई है मेरे साथ। तो दैट्स पार्ट ऑफ इट। Now we are like sitting in 2020s where everybody is locked down, and it's a time when people are quarantined. So I remember that in almost 16 sometime back, lot of year back, Newton's को quarantine किया गया था. That time he discovered calculus, and in year 2020 when Vijay Mandal get quarantined, so I try to discover some kind of a humor. Not sure kitna effective है, but yeah, let's try some more good jokes. So you know, मैं जब छोटा था, I mean, still I remember we all 4 brothers. I was the youngest most. We were sitting in front of TV and we were watching some movies, and हमारे घर में कोई बॉस हुआ करते थे, यूजुअली आवर फादर, पापा और माँ। हम लोग सब 6 के 6 लोग एक साथ टीवी बैठ के देखा करते थे। संडे का दिन हुआ करता था और कोई ना कोई हिंदी मूवी आती थी। तो बड़ा ऑकवर्ड होता था उस वक्त कि कोई ऐसी मूवी आए जिसमें कि कोई ऐसा ऑकवर्ड सीन आ जाए ऑल ऑफ सडन, और ऑल ऑफ सडन सब ऐसे एक दूसरे को देखने लगते थे और सबसे पहले नजर जाती थी जिसके पास रिमोट होता था, कहीं वो चेंज तो नहीं कर रहा। बट एनीवे सबसे यूनिक एक्सप्रेशन होता था हमारी मदर्स का। वो एग्जैक्ट जब वो सीन आता था, वो ऑकवर्ड सीन, तो माँ का पहला सेंटेंस होता था, हाँ मैं किचन जा रही हूँ और किसी को कुछ चाहिए खाने के लिए। अब आप यकीन मान लो कि एक मूवी थी जिसका नाम था दयावान। आई एम श्योर आप में से किसी लोगों ने ये मूवी देखा होगा और शायद सीन याद भी होंगे। और उस दिन आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 3 कप चाय और 4-5 कटोरे मिक्सचर और बिस्किट के खा लिए, सिर्फ इसी इंतज़ार में कि कहीं वो सीन मुझसे मिस ना हो जाए। जोक अबाउट, बट यू नो व्हाट, फिर हम लोग क्रिकेट भी देखा करते थे। हम 4 भाई, वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। क्रिकेट हुआ करता था तो हमारे जो कैप्टन्स होते थे उस वक्त, गावस्कर, कपिल देव, ये सब काफ़ी अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे। और जब भी वो अच्छा खेलते थे, अब बुरा खेलने का तो मुझे याद नहीं, लेकिन जब भी वो अच्छा खेलते थे तो पापा बड़े प्राउडली बोला करते थे, देखो सीखो कुछ, स्पोर्ट्स में भी लोग पैसे कमा सकते हैं,
कैसे कितना अच्छा खेलता है ये, इसका एज तुमसे 2 साल छोटा है और देखो कितना अच्छा खेल रहा है, कितना अच्छा कमा रहा है। अब ये बात हमारे पापा को कौन समझाए कि वो एक क्रिकेटर है और मैं आपका बेटा हूँ, इन दोनों में डिफरेंस है। अभी उन्होंने ये तो बता दिया कि वो एज में मुझसे 2 साल छोटा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके फादर ने, उनके मदर ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूट किया होगा उस क्रिकेटर को बनाने में। और बताओ, झूठ भी ऐसे बोला करते थे हम लोग को हमारे पापा की, मतलब अभी सोचता हूँ तो बहुत हंसी आता है। बोलते थे कि हम लोग अंधेरे में पढ़ा करते थे, कैंडल लाइट में पढ़ा करते थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। अभी आप बताओ मुझे कि वो लोग दिन में क्यों नहीं पढ़ाई करते थे? मतलब रात में कौन पढ़ता है? अभी अपने फादर को ऐसे कैसे बोल सकते हो? बट क्या दिन में क्यों नहीं पढ़ाई करते थे? अगर दिन में पढ़ाई कर लेते तो रात में उनको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंधेरे में कोई पढ़ाई करता है? और वो उतनी पढ़ाई करने के बाद क्या रिजल्ट होता था? 52%, 60%। अरे इससे ज़्यादा तो हम लोग सरप्राइज टेस्ट में लाया करते थे, 70%। ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो और एक और सबसे बड़ा झूठ, मतलब झूठ का मतलब हद ही हो गया। हाँ, जब मैं तुम्हारे एज का था तो पैदल चला करता था और स्विमिंग करके जाया करता था। अब आप मुझे बताओ, कोई स्विमिंग करके स्कूल कैसे जा सकता है? कैसे जा सकता है? अच्छा, इतना ही लॉजिक था तो वो टीचर जो समंदर के या नदी के उस पार रखा था, वो खुद स्विमिंग करके क्यों नहीं पढ़ाने आता था? लॉजिक है ना, लॉजिक है। चलो वो भी मान लिया। अभी उसके बाद मतलब मैं जब तुम्हारे एज का था तो मैंने पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए थे। हाँ, पूरा फैमिली हो गया था। मैंने कहा था कि कम एज में शादी करने के लिए। अरे एज होता है, कानून ने भी बताया एज के बाद ही उतना शादी करने के लिए। अभी मैंने तो आपको बोला नहीं, अब आपने तो कर ली पूरे फैमिली, उसके बाद फिर आप मुझे सुना रहे हो। अब ये लेक्चर सब देने के बाद भी मतलब ऑनेस्टली मतलब फादर है और जब हम छोटे हुआ करते थे और काफ़ी सारे स्टोरीज हैं ऐसे जो शेयर करने का है। बट यू नो इन अ कट शॉर्ट लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड। और एक चीज़ और, अभी मतलब अभी सब तरफ क्वारंटाइन है और लोग पहले तो बैंक वाले हैं कि भाई वी आर टुगेदर इन दिस कोरोना एंड हम तुम्हें लोन देंगे इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट पे, और यू नो आपको जितना अमाउंट ले लो, और वही ईएमआई भी में माफ, ईएमआई भी छोड़ दो, मतलब यू नो बाद में वसूल लेंगे, आपको पता ही है। लेकिन भाई आप लोग पहले कहाँ थे बैंक वाले, जब मतलब हम आपके बैंक में जाते थे और आपके बैंक में वो जो पेन होता है जिसमें आप लोग स्लिप में लिखते थे, वो भी आप रस्सी से बांध कर रखते थे। वो 2 रुपए का पेन रस्सी से बांध कर रखते थे, कहीं चुरा के ना ले जाए। हाँ, और अभी आप बोल रहे हो वी आर टुगेदर। और सबसे मज़ेदार बताऊँ मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप अगर बैंक में गए हो और अगर आपको बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ गई और आप किसी से पूछ लोगे कि बाथरूम किधर है, भैया आपको जल्दी से बताएंगे नहीं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब वो उनका तिजोरी है, ऐसे अलाउ नहीं करते। तो भाई मैंने भी सीख लिया। मैं गया था अपने बैंक में, मैंने पूछा भाई मुझे जाना है, इमरजेंसी है। बोले नहीं आ सकते। तो मैंने अपने रिलेशनशिप ऑफिसर को फ़ोन लगा दिया, तो उसने मुझे फ़ोन करके बोला था, सर आपको एनीवे यू फील एनीथिंग, एनी ट्रबल यू कैन कॉल मी। मैंने कॉल कर दिया। मैंने बोला भाई मैं अब तुम्हारे बैंक में खड़ा हूँ, मुझे बाथरूम जाना है, ये लोग मुझे बता नहीं रहे बाथरूम में कहाँ है, डू समथिंग। तो ऐसे मुझे बाथरूम जाने के दिए और मैंने बाथरूम में आराम से 20 मिनट बिताया। जैसे ही मैं बाहर निकला, बैंक का मैनेजर मेरे सामने खड़ा है, ऐसे कि मैंने उसके किडनी ले लिया। भैया बाथरूम ही यूज़ किया हूँ, इंटरेस्ट में देखें, लिक्विडिटी बढ़ाया आपके बैंक के। एनीवे ये बैंक था। अभी उसके बाद फिर बैंक के बाद फिर कौन आया, वो होटल वाले हो। आई रिमेम्बर जब CRA हुआ करते थे, हम लोग ट्रैवल पे जाते थे, तो जैसे ही चेकआउट का टाइम आता था तो सबसे पहला क्या होता था,
वो जो काउंटर पे बैठते ना वो ऐसे ऊपर से नीचे तक देखते थे, फिर ऐसे बोलते थे दो लोग को देख के, तुम ऊपर का चेक करो और तुम पूरा बाथरूम का ये चेक करो, और फिर वो इस चेकआउट में ही आपको आधा घंटा वेट करवाते थे। भाई मेरी शक्ल को तो देख लो भाई, मैं क्यों ऐसा करूँगा? मतलब 20,000 के रूम में मैं रह रहा हूँ, आपका 200 रुपये का ये रेड बुल पी के मैं क्या करूँगा? हाँ, और दिल्ली में गया मैं, मतलब मैं तो एकदम हैरान हो गया। मतलब 20 रुपये का जो हम लोग लेस खाते हैं उसका 200 रुपये का बिल फाड़ा मेरे को। हाँ, अरे उसमें तो ऐसे भी यार 90% हवाई होता है, वो भी दिल्ली गया हुआ पॉल्यूटेड, उसका भी पे करूँ मैं? हाँ, ये सब मतलब हद तो तब होती है ना, मतलब जब आप वेट कर रहे हो और ऊपर से किसी ने ऐसे सीढ़ी पे खड़े होके ही मतलब जोर से चिल्ला के, सर वो रूम नंबर 420 का जो था ना उसने ना सर एक रेड बुल ख़त्म कर दिया। भाई मुझे क्या पता रेड बुल का क्यों किसने ख़त्म किया? अरे आपने तो मुझे चेकलिस्ट दिया नहीं जब रूम के अंदर जा रहा था। अच्छा चलो ले भी लिया तो रिजनेबल ही लो ना, मतलब क्या है ये, मतलब 20 रुपये का सामान को आप 200 रुपये का बना के मतलब बिल फाड़ लो। चलो ले भी लिया, मतलब अभी मैंने सीख लिया कि अभी अगली बार जब होटल में जाऊंगा ना तो सामने की दुकान में जो होता है ना जहाँ पर वो चिप्स और वो सब मिलता है वो लेके आ जाता हूँ मैं। अब बिल फाड़ो। अब तो मैं जानबूझ करके क्या करता हूँ, जैसे मैं होटल में गया अब वो 200 रुपये का जो मिनी बार में था ना वो ख़त्म करके ना वो सामने की दुकान से लेके 20 रुपये का रख दिया मैंने। अब बताओ मैंने किसको बेवकूफ़ बनाया? अच्छा ये तो हो गया होटल वाले, वी आर सेइंग वी आर टुगेदर इन दिस कोरोना टाइम, होटल वाले। अब उसके बाद एयरलाइंस वाले, हाँ एयरलाइंस वाले, अरे हद हो गया, वी आर टुगेदर। यार आप लोग पहले कहाँ थे? हाँ, जब मतलब 2-2 मिनट के लिए जब हम लोग लेट हुआ करते थे, बागडोगरा जैसे रिमोट लोकेशन में गैंगटॉक में जाते थे हम लोग, वो पहाड़ से नीचे आने में हम लोग को 6 घंटे 7 घंटे 9 घंटे लग जाते थे। उसके बाद फिर वो जाके वहाँ से बागडोगरा से फ़्लाइट लेके फिर कलकत्ता से फिर वापस मुंबई, अरे पहुँचने में ही 18 घंटे लग जाते थे। हाँ, 2 मिनट लेट हो गया तो बागडोगरा में रोक के बोलते हैं यार सॉरी सर वी कैन नॉट बोर्ड यू, वी आर ऑलरेडी क्लोज्ड, यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट। हद है यार। हाँ, मतलब 2 महीने का 2 मिनट में यार तुम्हारा वो जाके कैप्टन को देखो, वो कैप्टन वो सुट्टा फूक रहा होगा कॉकपिट में बैठ के, और वो आप मुझे 2 मिनट में वो नहीं लेट हुआ तो आप मुझे रोक दिया। अब बोलते हैं ऊपर जब फ्लाइट पे जब होते हैं ना ऊपर में तो क्या बोलते हैं कि हमारा फ्लाइट कंजेशन, सॉरी फॉर दिस ट्रबल बट बिकॉज ऑफ दिस एयर कंजेशन एंड ट्रैफिक कंजेशन वी कैन नॉट लैंड, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, टेक्निकल ग्लिच। भैया हमारा टेक्निकल ग्लिच नहीं होता था जब हम लोग रात को जब 2 बजे सो के अपने मोबाइल में 4 बजे का अलार्म लगा के सोते थे, बट ये चेक करना भूल जाते थे कि हमारा मोबाइल कितना चार्ज है। वही मोबाइल चार्ज ही नहीं है तो अलार्म बजा नहीं, और उस टेक्निकल ग्लिच की वजह से मेरा फ्लाइट लेट हो गया। तब तुम्हारा कहाँ गया टेक्निकल ग्लिच? तब चला गया। चलो वो भी माफ, वी आर टुगेदर इन दिस कोरोना टाइम। अबे मतलब हद हो गया यार, कोरोना इतना मतलब लोग को परेशान कर रहा है, डरा रहा है कि मतलब आदमी आधा मर गया है। अब कितना मरेगा? अब एक ही चीज़ हो सकता है कि मतलब अब सामने से कोरोना चल के मैं बोला भैया सब कुछ देख लिया, अब सिर्फ आप ही बचे हो, अभी आप ही सब कुछ कर दो, आगे मैं नहीं कुछ कर सकता। सो थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग, सो होप you like this comedy, and see I had copied so many things just from my life and from my experiences. I just added some bit of it, but I hope you like it, and if you like it let me know. I'll share another sitting on chair comedy with you. This is your Vijay Mandal, over and out. Hope you like it. Thanks, bye bye, take care.